Hello students, today I am discussing an important model from your syllabus, that is Dagmar model. Instead of giving a complicated explanation, I will give simple one so that you can attempt this question easily in your exam. You can appreciate me by liking this video. So let's start with our topic. Dagmar is a marketing approach used to measure the results of an advertising campaign. Dagmar is an acronym that stands for, as you can see here, defining advertising goal for measured advertising result. इससे ही आपका डैगमार ये मॉडल बना है, DAGMAR. Dagmar seeks to guide consumer through 5 phases of regarding the product: unaware, aware, comprehension, conviction and action, while also setting specific measurable objective to determine the overall success of the campaign. Now we'll discuss the more detail about the model. This model, as you can see here, Dagmar, this model is given by Russell H. Cole in 1961. According to Russell Cole, the main objective of advertising is to communicate to a defined audience the necessary information that stimulates action in a given period of time. इस मॉडल में हम दो मेन फोकस करते हैं यहाँ पे आपके. एक फोकस जो हम मेन यहाँ पे करते हैं, द कम्युनिकेशन टास्क ऑफ एडवर्टीज़मेंट. फर्स्ट वाले पार्ट में मैं यही डिस्कस करूँगा और सेकंड वाला एक पार्ट और इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा जो आप उसको भी एग्ज़ाम में डिफ़ाइन कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन टास्क. यू कैन से देर आर 2 core things on which Dagmar model stood. First one is creation of a communication task to achieve goals, and second, defining the objective of communication task in a manner that the result can be measured. So in this slide I will discuss the communication task of advertisement, and this communication task involve 4 stages. First one is awareness, second comprehension, third conviction, फोर्थ एक्शन. इन 4 स्टेप को मिला के हम ये फॉर्मूला बनाते हैं ACCA. ये इनके फर्स्ट हमने लेटर लिए हैं. दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी मोर पॉपुलर. एक मॉडल और आपका आता है एडा, ये इससे ज़्यादा पॉपुलर है. Important part of this Dagmar model are defining the target audience, means people whom to the advertisement message is addressed to, and the objective goals of advertisement message, which I will discuss on second last slide of my presentation. Now move to our model. As you can see, ये मॉडल आप as it is एग्ज़ाम में डिफ़ाइन करोगे. Dagmar, awareness, comprehension, conviction and action. We'll discuss in detail. मैंने आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी है इनकी एक एक की लाइन की. विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस, मीन्स बिफोर परचेज बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टारगेट ऑडियंस, इट इज़ नेसेसरी टू मेक ऑडियंस अवेयर. सबसे पहले तो आप अवेयर ही कराओगे ना उसको विद द प्रोडक्ट और कंपनी, मीन्स ये आपका सबसे नेसेसरी स्टेप है. The initial communication task of advertisement activity is to increase the consumer awareness. जितनी भी आप एडवर्टीज़मेंट आप देखते हो सबका एक ही मेन एम यहाँ पे सबसे पहला एम क्या रहता है, जस्ट टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट और द वेरियस ऑफरिंग. सेकंड जो हम इसमें डैगमार मॉडल में जो बात करते हैं मेन होता है कंप्रीहेंशन. आप इसको अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो. सिर्फ अवेयरनेस ही काम वहाँ पे नहीं देती है. टू स्टिमुलेट अ परचेज मीन्स यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन वेन एवर इट इज़ नेसेसरी. इन दिस स्टेप द टारगेट ऑडियंस टू लर्न समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफर.
Here communication task of advertisement activity is to make the consumer learn about the product, मीन्स आपके प्रोडक्ट के बारे में वो थोड़ा सा यहाँ पे सीखेगा, और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, वो उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो आपके उसके यूजेस हो सकते हैं. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मॉडल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड वन इज़ एटीट्यूड, और हम इसको बोलते हैं कन्विक्शन. इन दिस परसुएडिंग द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट, यू विल परसुएड द कंज्यूमर कि वो आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे बाय करें. एट दिस स्टेप अ सेंस ऑफ कन्विक्शन इज़ एस्टैब्लिश्ड. वहाँ पे आप क्रिएट करोगे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बायर आर मूव्ड टू अ पोजीशन वेयर दे आर convicted that a particular product class should be tried at the next opportunity, right? At this step, communication task of advertisement activity is to mold the audience belief. वहाँ पे आप उनको क्रिएट करोगे प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ ऑफन डन थ्रू मैसेज. आप वहाँ पे मैसेज का भी यूज़ कर सकते हो. दैट विल डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट सुपीरियोरिटी ओवर अ राइवल, मीन्स कंपटीटर से आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बेटर है. और बाय टॉकिंग अबाउट द रिवार्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि आपको कौन कौन से वहाँ पे रिवार्ड मिलेंगे. फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, एक्शन इज़ द फाइनल स्टेप. कम्युनिकेशन मस्ट एनकरेज बायर टू एंगेज इन परचेज एक्टिविटी. यही तो सबका मेन एम होता है, गेटिंग द कंज्यूमर टू एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट जो हमने बात की थी, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इन द डैगमार अप्रोच. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ डैगमार वाज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग और द कम्युनिकेशन टास्क विच वर टू बी क्रिएटेड. ओनली यू कैन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, और देन द मेजरिंग ऑफ द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स वाज कंपैरेटिवली ईजियर. जैसे ही आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करोगे कि आपने कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो आपके एडवर्टीज़मेंट के रिज़ल्ट्स को वहाँ पे अचीव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. विद दिस मूव रसेल कोले ऑल्सो गेव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट. नॉट ओनली वर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स मेड, they were also responsible how well they understood the objective of advertisement and how they incorporated these objective into the communication task. क्योंकि सिर्फ उनको ऑब्जेक्टिव को समझना ही ज़रूरी नहीं है, उन ऑब्जेक्टिव को समझ के जो कम्युनिकेशन टास्क वो बना रहे हैं वो उनको उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन. देयर आर 4 टास्क. ये हम पार्ट कई बार स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं ऑब्जेक्टिव को, वो सिर्फ पिछले वाले जो स्लाइड में मैंने डिस्कस किया वो 4 पे ही मॉडल को ख़त्म कर देते हैं. बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैगमार अप्रोच. फर्स्ट वन इज़ concrete and measurable task. The task need to be precise statement of what the advertiser want to achieve through the communication. Does he want to strengthen the brand image, maximize the brand presence, penetrate new market or increase overall sales? मीन्स आपको जितने भी गोल्स हैं वो मेजरेबल टास्क होने चाहिए, वहाँ पे वो कंक्रीट होने चाहिए, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा. सेकंड वन इज़ टू डिफाइन द टारगेट ऑडियंस. ये बहुत ज़रूरी है. बिफोर द कम्युनिकेशन टास्क commences, the target audience needs to be defined as precisely as possible. Are you targeting youngster? आपको डिफाइन करना पड़ेगा. Are you targeting adults, elderly? Any of the various forms of segmentation can be used to define the target audience. आपने segmentation का टॉपिक पढ़ा है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो इस सेकंड स्टेप में. थर्ड, डिग्री ऑफ चेंज शॉर्ट. What level of perception, attitude or awareness of the customer do you want to change? आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू, इस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप क्या चेंज करना चाह रहे हो. इफ़ अ कस्टमर इज़ अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, डू यू वांट हिज नेगेटिव एटीट्यूड टू चेंज इनटू पॉजिटिव. अवेयर तो है आपके बारे में वो, बट
आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि उसका कोई नेगेटिव एटीट्यूड्स है तो आप उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करो। थर्ड वन इज़ द टाइम पीरियड। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क, हाउ मच टाइम are you ready to allot? If you think that in a month the product can create awareness in the complete market, then you are very wrong. That's why major advertiser try to introduce the product for 3 months. Normally वो 3 महीने के लिए उसको क्रिएट करते हैं and then communicate the features and benefit in next 3 months so that the brand recall is high and brand acceptance is high as well. A defined time period gives better measurability. वहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से मेजर कर पाओगे यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम पीरियड है। कई बार इस मॉडल की हम कंट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डैगमार अप्रोच क्या है? द डैगमार अप्रोच इज़ यूज्ड बाय मैनी promotional planner to set plans of advertising and marketing. This approach is used to set advertising objectives and to measure the result against the plan. आपने दो चीज़ें यहाँ पे वो अचीव करते हैं। एडवर्टीज़मेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, और उन एडवर्टीज़मेंट के ऑब्जेक्टिव को मेज़र करने का आपके पास सबसे अच्छा प्लान क्या है। रसल कोले वर्क्स has led to the improvement of the advertisement world because these communication tasks were not only sales driven, they achieved various goals of the organization only through the advertising. Now move to the next part. ये जैसे आप कंक्लूजन लिखते हो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, दिस इज़ अ क्रक्स ऑफ दिस मॉडल. Dagmar approach has led to the improvement in advertisement planning process. As I said, you can see here, with the help of Dagmar model, the effectiveness of advertisement can be measured in terms of its ability to move the customer along with hierarchy. हमने 4 स्टेप पढ़े थे ना, आपको याद हैं चारों? अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन. द मॉडल enables the marketer to define the target market or you can say audience for the commercial. आप जो एडवर्टीजमेंट आप चलाना चाह रहे हो उसके लिए आपका टारगेट मार्केट या ऑडियंस कौन है. बट इसमें एक दिक्कत रहती है, डैगमार मॉडल इज़ वेरी कॉस्टली एज एक्सटेंसिव रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी फॉर सेटिंग क्वांटिटेटिव टारगेट एंड मेजरिंग दैम. आई होप ये आपको मॉडल क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली. आई होप you understand this topic from your syllabus. Feel free to ask any question in my comment box. I will try to answer as soon as possible. Thank you so much.